Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 22 of English Communication. Topics to be covered in this session are characteristics of communication, communication model, elements of communication, barriers to communication, how to overcome barriers to communication. So let's start with the characteristics of communication. Communication is a non-stop process and is a vital ingredient for success both within and outside the workplace. एक ऐसा नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, चाहे वो वर्क प्लेस के अंदर हो या फिर बाहर. It is a part of soft skills as opposed to domain or technical knowledge, which is called hard skills. It is part soft skills. A formal study of business communication is very important since the average business executive today spends a good part of his time on the job communicating in some form or the other. So in this session we are going to study how communication involves in certain key elements. कैसे communication हमारे लिए एक बहुत ही important part है हमारी life का, और no matter in what context it takes place, but it is an ongoing process. It is a continuous non-stop process which keeps on moving, which keeps on happening all the time. There are some problems also due to which it affects the flow of communication. They come in the way of smooth functioning, smooth communication, and ways of overcoming these problems are there. So let's study about that. In order to understand communication, we can define communication in simple terms that it is a transfer of information between people resulting in common understanding between them. जब भी लोगों में कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है जिसकी वजह से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को हम और भी कई सिंपल टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस by two or more persons. We can also say that it is a sum of all the things one person does when he wants to create an understanding in the mind of another. The verbal interchange of thoughts or ideas can be defined as communication. We call it as a transmission of इंफॉर्मेशन हो, चाहे आइडियाज़ हों, इमोशंस हों, स्किल्स हों, by the use of symbols, words, pictures, figures, graphics. This is called communication. It is the act or process of transmission that is usually called communication. In the words of Fotheringham, he says that communication is a process involving the selection, production, and transmission of signs in such a way as to help a receiver perceive a meaning similar to that in the mind of communicator. So it is clear that communication has few important characteristics. क्या characteristics हैं? That is, इसके बारे में मैंने आपको एक सिंपल टर्म्स में बताया कि कम्युनिकेशन मीन्स इट्स अ ट्रांसफ़र बिटवीन पीपल, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल दैट रिजल्ट्स इन कॉमन अंडरस्टैंडिंग. किसी भी तरीके से हम कोई शेयर करते हैं जब इंफॉर्मेशन को, चाहे वो ट्रांसमिशन किसी इंफॉर्मेशन का हो, आइडियाज़ का हो, इमोशंस का हो, स्किल्स का हो, बाय द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ, उन सबको हम कम्युनिकेशन ही बोलते हैं. अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये कह सकते हैं कि ये अनअवॉइडेबल है, अनइंटेंशनल है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू नॉट कम्युनिकेट सिंस वी कम्युनिकेट अनइंटेंशनली. क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो हम अनइंटेंशनली कई बार बोलते हैं, और ऑल द टाइम व्हेन वी स्पीक इट इज़ अनइंटेंशनल. इवन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स हम
ये तो सोच सकते हैं कि हम हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वर्ड्स का यूज़ ना करें, पर बॉडी लैंग्वेज, द वे वी ड्रेस, द इम्पोर्टेंस वी गिव टू अराइविंग ऑन टाइम, हमारा बिहेवियर, फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच वी वर्क, सभी चीज़ों में से कुछ ना कुछ मैसेज निकलता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है. सो इन ऑल अगर हम बात करें तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो कन्वे हो ही रही है, तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन तो फ्लो वहाँ हो रहा है. सो वी कैनॉट अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट. इट इज़ अनइंटेंशनल ऑल द टाइम. टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है वो शेयरिंग है इन्फॉर्मेशन की बिटवीन टू और मोर पर्सनस विद कंटिन्यूस फीडबैक. क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होता है तो ये नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली हम आगे जो हमने बताई किसी को बात, वो उसे समझ में भी आई या नहीं आई. तो कंटिन्यूस फीडबैक के साथ ये इस तरीके का टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है. इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है. ईच मैसेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड डज नॉट अकर इन आइसोलेशन. हर एक मैसेज जो है वो प्रोसेस का पार्ट है और अकेले में कभी भी अकर नहीं करता है, बिकॉज दिस मीन्स दैट मीनिंग अटैच टू अ मैसेज depends on what has happened before and on the present context. For example, your boss response to your request for a promotion will depend on your past relationship with him as well as his mood at that particular moment. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो पुराना जो चल रहा था, what has already happened before, या पास्ट रिलेशनशिप कैसी है आपकी अपने बॉस के साथ, या मूड कैसा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. सो इट्स अ continuous process. It's a part of each message is a part of process and does not occur in isolation. Another important characteristic of communication की अगर हम बात करें तो सेंडर और रिसीवर होना बहुत ज़रूरी है. एनी कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद सेंडर and requires a receiver to attach some meaning to that message. Verbal, non-verbal. कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, या फिर ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है, सच एज जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस. इट इज़ सक्सेसफुल व्हेन द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन द सेम वे एज दैट इंटेंडेड बाय द सेंडर. So receiver does not always attach the same meaning to a message as the sender. When the message is wrongly interpreted, communication is a failure. This may be due to many reasons, several reasons, but we'll study about them. But the message is successful only and only if the message sent is perceived same by the receiver. These are the few characteristics of communication that we have studied. Here you can see the communication process. Irrespective of the setting in which communication takes place or the number of people that are involved, all communications consist of certain key elements. कुछ key elements उनमें रहते हैं. Model you can see here illustrates these elements. क्या क्या elements हैं आप देख सकते हैं, जिसमें sender, encoder, मैसेज, रिसीवर, डीकोडर और नॉइज़. अगर हम सेंडर एनकोडर की बात करते हैं तो ये वो पर्सन है जो मैसेज ट्रांसमिट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर इज़ राइटिंग अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू अ कस्टमर रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और सेल्स मैनेजर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन टू हिज सेल्स टीम. दैट इज़ ही इज सेंडर एट दैट टाइम. ही ट्रांसमिट्स मैसेज. रिसीवर डी कोडर की अगर हम बात करते हैं तो जो पर्सन नोटिस करता है, डी कोड करता है या कुछ मीनिंग अटैच करता है टू द मैसेज, ही इज़ द डी कोडर. डी कोडिंग में नॉट बी ऑलवेज एक्यूरेट इन अ रॉन्ग मैसेज मीनिंग मे बी अटैच टू अ मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंडली जोक माइट बी टेकन एज एन ऑफेंस or feedback given to a subordinate by a superior might be taken in the wrong sense. So in that case we can say receiver is a person who transmits, who interprets the message, that is who notices and decodes the message what is being
transmitted by the sender. मैसेज की अगर हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली द सिग्नल दैट ट्रिगर्स रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर. सो मैसेज मे बी इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नॉन वर्बल साइन से हो, जैसे कि यॉर्निंग हो गया विच कन्वेज द मैसेज ऑफ बोर्डम. लेकिन मैसेज जो है वो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर. चैनल की अगर हम बात करते हैं तो दिस रेफर्स टू द मीडियम यूज टू डिलीवर मैसेज. ये वो मीडियम है जिससे कि हम मैसेज डिलीवर करते हैं. एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव आपके पास बहुत सारी चॉइस, चैनल की चॉइस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपना मैसेज सेंड करेंगे. फीडबैक दैट इज रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू मैसेज. मोस्ट कम्युनिकेशन इज टू वे. Receivers generally respond to messages. For example, student may ask questions during a lecture session. An employer may tell an employee that he has to think about the proposal. This response to a sender's message is called feedback. This kind of feedback is oral. Sometimes feedback could also be written, as when you respond to a customer's complaint. फॉर एग्ज़ाम्पल द अदर टाइम्स फीडबैक जो है वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, जैसे कि हम कई बार रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू स्माइल्स या नॉड्स ऑफ अप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ टॉक और प्रेजेंटेशन. कई बार जब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इवन फेलियर टू रिस्पॉन्ड कुड बी कंसिडर्ड एज सेंडर्स मैसेज. ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ फीडबैक पीपल आर साइमल्टेनियसली सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ये हो गया एनकोडर, डिकोडर, मैसेज, चैनल एंड फीडबैक. Few more things that are important, they are the elements of communication and they are involved in the process of communication. That is noise. Communication fail हो जाता है अगर मैसेज जो है वो उसी तरीके से रिसीव नहीं किया जाए जिस तरीके से भेजा गया है. कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस. नॉइज़ वही फैक्टर्स को हम कहते हैं. नॉइज़ रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स that disrupt the process of communication. There are three different types of factors, three different types of noises which are involved in the elements of communication. One is physical noise, another one is physiological noise, and third one is psychological noise. Physical noise की अगर हम बात करते हैं तो physical noise का मतलब है distracting sounds, पुअर अकाउस्टिक्स, या सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है. इट कुड इंटरफेयर विद द लिसनिंग प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सुनने में परेशानी होना, थके होना, फटीग, फिजिकल इलनेस, दे कुड कम इन द वे ऑफ बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग. साइकोलॉजिकल नॉइज़ की अगर हम बात करते हैं तो sometimes emotions within the sender or receiver such as preoccupations, hostility, fear or lack of interest could interfere with the speaking or listening process. Another important element of communication is context. 3 नॉइज़ के बारे में हमने जाना. फिजिकल इज़ जहाँ आसपास सराउंडिंग साउंड्स हों, अकाउस्टिक्स पुअर हो. फिजियोलॉजिकल जब सचमुच में हमें सुनने में परेशानी हो, या फिर थके हुए हैं, या फिर फिज़िकल इलनेस है, वो सब फिजियोलॉजिकल. और साइकोलॉजिकल में जब आप डर रहे हैं या लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कुछ पहले ही काम में बिजी हैं, तो वहाँ पर ये नॉइज़ बनकर फैक्टर्स जो इंटरफेयर करते हैं कम्युनिकेशन, उनके बीच में आ जाते हैं. साथ साथ में कॉन्टेक्स्ट विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन सेटिंग. This refers to the setting in the communication in which communication is taking place and could sometimes determine the success or failure of the communication. Context could be classified as follows. Like physical context, जिसमें हम physical surroundings को लेते हैं, जैसे कि जो भी work या social environment है हमारा in which the communication takes place. Asking your boss for a promotion
might be received differently depending on whether the communication takes place in your office, your boss office, at a company party, or over lunch at a restaurant. सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, asking for promotion is likely to be received differently depending on how well you get along with your boss, whether you are personal friends or not. क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हैं वहाँ पर टाइम रिलेटेड फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज़ योर रिक्वेस्ट मेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एट द फैग एंड ऑफ द डे? इज़ इट मेड ड्यूरिंग और आफ्टर वर्क आवर्स? Is it made at a home? It is made at a time when the company is going through problems such as strike in the factory or major losses. तो वो कब आपने बोला उस चीज़ से बहुत डिपेंड करता है. टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सेटिंग है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके साथ साथ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, चाहे वो एज के मामले में हो या लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर. दीज फैक्टर्स कुड इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन फेवरेबली और अनफेवरेबली. ईच ऑफ द एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबव कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन. इनमें से अगर कुछ भी रॉन्ग हो जाता है, इफ़ एनी ऑफ द एलिमेंट गो रॉन्ग, तो पूरा कम्युनिकेशन जो है वो एक फेलियर हो जाता है. अगर हम रॉन्ग पर्सन चूज़ कर लें या रॉन्ग पर्सन उसे मैसेज को भेजे. एक जूनियर अकाउंटेंट अगर 100 करोड़ के लिए लोन के लिए मांगे, अगर लोन मांगे बैंक से, तो ऑब्वियसली उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इट इज़ नॉट लाइकली टू गेट द बैंक्स अप्रूवल बिकॉज गलत पर्सन ने वो मैसेज भेज दिया. मैसेज इज़ अनक्लियर और बैडली वर्डेड, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मैसेज में और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, वहाँ पे भी मैसेज एक फेलियर हो जाता है. रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया रिसीवर ने, गलत मीनिंग अटैच कर दिया, रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन चूज़ कर लिया आपने, फीडबैक जो है वो एडिक्वेट नहीं है, और फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल, हमने साइकोलॉजिकल नॉइज़ के बारे में पढ़ा, इनमें से कुछ भी अगर बीच में आ जाए, एंड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द रॉन्ग फिजिकल, सोशल, क्रोनोलॉजिकल और cultural context. So these are the various elements of communication, and each of these elements are very important for the success of communication. अगर इनमें से कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करता है तो this brings us to many problems in the effective communication, और वो barriers create करते हैं, obstacles create करते हैं in the way of effective communication. We'll study about barriers to communication, how can we overcome the barriers to communication. But in the part 2 of this session, that's all for this session by now. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.